नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और 5 की पंचायत का हम रुख करें उससे पहले आपको बता दें कि शक्तिकांत दास इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। सीधे रुख करते हैं उसका। जो सीज नोट से वो तुरंत as soon as possible it is being put back into circulation। ये नहीं कि उसको रखे रहे हैं कोर्ट में प्रूफ करना, ये नहीं है। इसको that is being put back into circulation and दूसरा क्वेश्चन क्या था? कितना सीज किया गया इस नहीं, सीज का फिगर मेरे पास तुरंत अवेलेबल नहीं है। आपने जो बताया कि कितना मतलब आ गया वापस, उसके बारे में सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि ये जो फिगर्स आ रहे हैं कुछ सेक्शंस ऑफ द मीडिया में, आरबीआई ने कुछ दे हैव अनाउंस्ड सम फिगर्स आल्सो यस्टरडे। यू सी there are lot of areas where we feel that there could be double counting. So we have identified those areas and we have requested RBI and the banks to again double check. So a process of correction, checking, counter checking of the figures, what you call sanitization or not sanitization, but the checking, the kind of a due diligence is being done. To see that there is no double counting of the figures. And that process is on. So once we have some clarity, we will talk about it. Now you have asked to answer. जांच एजेंसियां हैं, उनको इंक्वायरी आ रही है कि जो नए नोट सीरीज के जब्त हो रहे हैं किस ब्रांच से इश्यू में पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि चेस्ट से लेकर नहीं, उसका जो आप कह रहे हैं कि किस ब्रांच से आया है, उसके बारे में हमने वो एक लोकल लेवल में ईच रीजनल डायरेक्टर जो है आरबीआई के, उनके साथ जो लोकल ऑफिशियल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के और जहां जहां जरूरत है सीबीआई की हो या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की हो, लोकल लेवल में उनका एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म फॉर्म किया गया है और वो डाटा माइनिंग करके दे आर एबल टू वी फील दैट दे विल बी इन ए पोजीशन टू नैरो डाउन to the source, कहाँ से ये नोट्स आए। I'll come back. Sir, although you're saying that a lot of currency printing is happening, still when you go to a bank branch, they're suffering with cash crunch. Do you think post 31st of December, when the restrictions go up, situation is only going to worsen from there? And sir, are you looking at lifting the restrictions after 30th December, sir? Would you be looking at lifting the? Is it a related question? Yes, sir. Are the restrictions actually going to be lifted after December 30th? You see, what government will do on 31st December or after immediately 30th December, I will not be able to say now. You will know it on 30th December. Obviously, we have been communicating. Please, we have been communicating, so we will continue to communicate. And your point about situation will worsen. I don't foresee a situation like that. The situation is improving, and if anything, the situation will only improve after 30th December, because more and more notes are going on. You see, the problem has been little compounded by the fact that 2000 rupee notes were kept, without putting it back into circulation. So when more 500 rupee notes go into the system, so even 2000 rupee notes also will come out circulation. And let me mention that there has been substantial improvement, there has been considerable improvement, but there are, as I mentioned, there are still areas and pockets where we are getting daily complaints, we are getting daily feedback, and based on that action is being taken. और एक बड़ी खबर आपको एक और बता दें कि नोटबंदी पर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा मचा हुआ है और लोगों को अपने पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो करोड़ों की काला धन एक के बाद एक जब्त किया जा रहा है। और इस बीच करोड़ों की नई करेंसी मिलने पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगा दी है। यानी जो नई करेंसी मिली जा रही है उसको लेकर सरकार को फटकार लगाई है और करोड़ों की नई करेंसी छापे में कैसे बरामद हो रही है, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है। केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब सामने आया है उसमें उन्होंने कहा है कि अवैध रूप से नई करेंसी मिलने में बैंक मैनेजर शामिल हैं। घोटाले में शामिल बैंक मैनेजरों पर कार्रवाई होगी, ये भी सरकार ने साफ कर दिया है। तो नोटबंदी पर ही हमारा 5 की पंचायत का मुद्दा है। नोटबंदी का फैसला लेने के पीछे मोदी सरकार ने काले धन को ही बड़ी वजह बताया था, लेकिन नए नोट बाजार में आते ही काले धन के कुबेरों के पास नए नोट पहुंच गए। लोग कतार में खड़े होकर 2000 के एक एक नोट का इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए तरस रहे हैं, तो कुछ के लॉकर्स में नए नोटों की खेप पहुंच चुकी है। घरों से करोड़ों के नए नोट बरामद हो रहे हैं। आखिर कैसे हो रहा है ये सब कुछ? 5 की पंचायत में आज हम यही सवाल उठा रहे हैं कि क्या बैंकों की धांधली से बदनाम हुई नोटबंदी, और काले धन के खेल का जिम्मेदार कौन है, सरकार या फिर बैंक? आपको अपने पैनल से हम मिलवा लेते हैं।
हमारे साथ जीवीएल नरसिम्हा राव जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के, वो जुड़ गए हैं। साथ ही अभय दुबे प्रवक्ता कांग्रेस, वीके सूरी साहब बैंकिंग एक्सपर्ट और अश्विन राणा जो कि वाइस प्रेसिडेंट है नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 5 की पंचायत में। सबसे पहले सवाल, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगा दी है केंद्र सरकार को, तो जीवीएल आपसे, ये सब कुछ जब एक पॉलिसी बनाती है सरकार, भले ही सरप्राइज पैकेज के तौर पर हमें दिख जाता है, लेकिन कुछ तो दिमाग में होता है, कुछ तो एंटिसिपेशन होती है। एक 10वीं क्लास का बच्चा भी बता देगा कि अगर ब्लैक को व्हाइट करना होता है तो सबसे पहले उसने हाथ मारेगा बैंक। बैंक के ऊपर नजर पहले से क्यों नहीं रखी गई? तो साक्षी जी, ये कहना आसान है, लेकिन 2 लाख ब्रांचेस में कैसा क्या क्या काम हो रहा है, वो कोई सेंट्रल ऑफिस में बैठ के आप तस्वीर तो नहीं देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें। तो जैसा इसलिए ये अपेक्षा रखना ही गलत है। पर लेकिन जो गलत काम हुआ है इस पर किसी को सरकार नहीं छोड़ रही है। जो जिस प्रकार ऐसे केसेस को जो डेटा माइनिंग करके बैंक से जो पैसा को रिलीज किया गया, विड्रॉ किया गया, उसके आंकड़े को जनता के सरकार के पास वो सारे जानकारी है। उस जानकारी के आधार पर केसेस को, स्पेसिफिक केसेस को आइडेंटिफाई करके उनको टारगेट करके उनको उनके ऊपर छापे मार रही है। ये सारे सरकार के संस्था ये कर रहे हैं, कोई मीडिया संस्था नहीं कर रही है, ना ही कोई राजनीतिक संस्था कर रही है। तो इसलिए सरकार जब अच्छे काम कर रही है, अच्छे इस प्रकार के काले धन के कारोबारी करने वाले लोगों को पकड़ रही है, जनता इसकी सराहना कर रही है। हम हाथ बांध के नहीं बैठे हैं। तो जो गलत काम कर रहे हैं उनको किसी को नहीं बख्शा जाएगा। ऐसा कई लोगों को कई शुरुआत पकड़ रहे हैं। बोलकर कि इतना आसान नहीं है, लेकिन सबसे मुश्किल काम ही तो सरकार ने कर दिखाया है ना। जब आपको ही शौक है बहुत मुश्किल काम करने का, तो फिर क्यों आप हर चीज के लिए आसान तरीके ढूंढते हैं? और ये कहना कि सारे बैंकों के ऊपर नजर रखना मुश्किल है, फिर आपको ऐसा जब आप फैसला करते हैं तो आपको प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना। पूछा तो आपसे जाएगा ही। चलिए मैं इस बीच अभय दुबे जी आपसे पूछती हूँ, तो क्या ये सही नहीं है? आपको लगता है ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए था? नहीं, तो मैं तो आपको लगता है, आप ही ने कहा कि आसान नहीं है। आपको ऐसा ही लगता है? बिल्कुल हाथ बांध करके बैठना चाहिए। सर, आप आसान शब्द का इस्तेमाल अगर करेंगे कि आसान नहीं है करना, तो सरकार में तो आप ही है ना। जब आप मुश्किल काम करना चाह रहे हैं, नोटबंदी जैसा काम मुश्किल था कि नहीं था? किसी को छोड़ नहीं रही है सरकार। ये जनता इसे देखिए, आप जब मीडिया में बात करते हैं तो आपको थोड़ा बैलेंस रख के बात करना पड़ेगा। करके ही बात कर रही हूं मैं आपसे। प्रकार की नहीं बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आपको लगता आपके ऑफिस में क्या हो रहा है? हर ऑफिस में आपको बैठ के पता है? जीवीएल साहब, आप ये छोड़ दीजिए। आपके मुताबिक सवाल किया जाए तो हम बैलेंस कर रहे हैं, आपके मुताबिक सवाल नहीं हो तो चलिए कोई बात नहीं। हमारा तो मुद्दा ही आज का बिल्कुल आप ही को हम लोग बोल रहे हैं कि जी क्या बैंकों की वजह से जो नोटबंदी है वो बदनाम हो गई। हमारा तो मुद्दा ही एकदम बैलेंस्ड है। चलिए मैं जरा इस बीच अभय दुबे जी से बात कर लेती हूँ। अभय जी, क्या ये नहीं माना जाना चाहिए और क्यों आप लोग अब विरोध कर रहे हैं कि जो नोटबंदी को बदनाम एक तरह से बैंक मैनेजरों की तरफ से हुआ जा रहा है, बैंकों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है? क्योंकि जो जितनी खेप पकड़ में आ रही है वो तो बैंकों से बाहर निकल रही है ना। इसमें सरकार का क्या दोष है? कितनी शर्मनाक बात है साक्षी जी, आप ये देखिए कि एक रिस्पॉन्सिबल स्पोक्सपर्सन सिर्फ बैंकों पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं। जब मैंने बैंक से बात की तो उन्होंने कहा कि आज से नहीं, हम तो कालांतर से जितनी डिनोमिनेशंस हमारे पास आती है और जितनी हम दे देते हैं उसका इवनिंग में रोज रिकॉर्ड भेजते हैं। तो इसीलिए तो मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि ऑर्गेनाइज्ड लूट है ये एनर्जी के सिद्धांत की तरह इट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ऊपर के शीर्षस्थ लोग जब तक मिले हुए नहीं होंगे, आप ये देखिए इस कैश क्रंच में लोग 800 घंटों से कतार में खड़े हैं, लेकिन 50 करोड़ 20 करोड़ और एक सीरीज के नोट, ऐसा नहीं कि वो छोटे छोटे लोगों से कलेक्ट करके मनी इकट्ठा की हो, एक सीरीज के नोट। मुझे बताइए क्या एक ब्रांच को, मैंने जब ब्रांचों में पूछा तो उन्होंने कहा कि मुश्किल 1-1 2-2 गड्डियां हमको सप्लाई हुई है, इसीलिए तो हमने बाहर बोर्ड लगाया कि कैश नहीं है। लंच के पहले तक कैश खत्म हो जाता था। तो इतनी बड़ी सप्लाई
क्योंकि जो आरबीआई ने आखिरी प्रेस रिलीज दी है उसमें उन्होंने कहा जो सीआईसी है, करेंसी इन सर्कुलेशन है, वो 4,61,000 करोड़ है। मैं पूछना चाहता हूं कि 2,402 करोड़ पीसेस प्रिंट करने हैं सरकार को और 300 करोड़ पीसेस पर मंथ प्रिंट करते हैं तो 8 महीने का समय लगेगा। लेकिन अभी जो कैश आया वो ये ऑर्गेनाइज लूट नहीं तो और क्या है? कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करेगा? आप सिर्फ मैनेजर्स पर छोड़कर नहीं भाग सकते। पहली बात तो अपरिपक्व निर्णय लिया, इसलिए ये परिस्थिति। बैंकिंग एक्सपर्ट हमारे साथ वीके सूरी, क्योंकि आप लोगों ने ठीकरा बैंक के ऊपर डाल दिया है, इसलिए वीके सूरी साहब हमारे साथ है, बैंकिंग एक्सपर्ट हैं। वीके सूरी साहब, ये काले धन को सफेद करने का जो ठीकरा पड़ गया है बैंक के ऊपर, क्या आप मानते हैं कि सरकार इसके लिए जिम्मेदार है या फिर बैंक्स? नहीं, बैंक इसके लिए जिम्मेदार जो 2, 4, 5 आदमी 1%, आधा % निकले हैं, उन्होंने बेईमानी करी है, उन्होंने कुछ गड़बड़ करी है, तो सारी की सारी बैंकिंग इंडस्ट्री को तो उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। सारे कर्मचारी और सारे अधिकारी तो उसके लिए करप्ट नहीं हो जाएंगे। अगर ऐसा होता तो जो इकोनॉमी है वो बैंकिंग जो है, बैंक्स जो है, बैंकिंग जो है उसकी रीढ़ की हड्डी है, वो तो कोलैप्स हो चुका होता कब के। अगर 18 घंटे 20 घंटे काम किया उन लोगों ने, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक उन्होंने काम किया है, और ये कह देना कि सारे बैंक अधिकारी और कर्मचारी जो हैं वो भ्रष्ट हैं, ये बिल्कुल गलत होगा। और जहां अभी आप ही की रिपोर्ट ने बताया है कि एक्सिस बैंक में 44 अकाउंट जो हैं वो फर्जी देखे गए, तो ये जो प्राइवेट बैंक्स हैं इनकी स्क्रूटनी या इनकी इंस्पेक्शन जब रिजर्व बैंक या और इंस्पेक्शन टीम्स करती हैं तो वो उस वक्त क्यों नहीं निकाले गए? ये क्या 44 बैंक अभी के अभी तो नहीं खुले हैं फर्जी नहीं, और वो ये कहते हैं कि इतना आसान नहीं है उसके ऊपर नजर रखना। लेकिन तो ये पैसा जब ये सिर्फ बैंकों से ही, ब्रांचों से ही नहीं, 1 मिनट और लूंगा, ये पैसा सिर्फ ब्रांचों से ही नहीं निकला होगा। ब्रांच में एक अकाउंटेंट बनी आती है और अकाउंटेंट बनी उसको डिस्बर्स किया जाता है। इसके लिए पूरी इंक्वायरी करानी चाहिए कि ये पैसा कहां से इतनी बड़ी तादाद में लोगों के पास पहुंचा है। देखो, अश्विन राणा साहब जो कि वाइस प्रेसिडेंट है नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स, अश्विन राणा साहब, क्या आप ये समझते हैं, मानते हैं कि एक जो इन्होंने बोला कि 1% या कुछ परसेंट लोगों की वजह से सारे वर्कर्स के ऊपर आ रहे हैं, सरकार ने बहुत आसानी से सारा ठीकरा फोड़ दिया बैंक के ऊपर? बिल्कुल ठीक है कि हमारा यही कहना है कि जो बैंक कर्मचारियों ने 4th क्लास से लेकर चेयरमैन तक लेवल पर हर कर्मचारी ने 24 घंटे, 20 घंटे, 18 घंटे, आज भी 12 घंटे काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम किया। अगर 1% कुछ लोगों ने गड़बड़ की है तो उसकी जांच होनी चाहिए और उनको जो है उनको उसमें टांगना चाहिए। और दूसरा, ये जो कह रहे हैं कि इतना पैसा जो मार्केट में आया है वो सीरीज है, तो आरबीआई बताया कि उस सीरीज के नोट किस बैंक को दिए गए, तो उस बैंक को पकड़ा जाए। आप मीडिया हो या सरकार हो या ब्यूरोक्रेट हो या ऑपोजिशन हो, ये बैंक को टारगेट मत करें। आप पर्टिकुलर बैंक और बैंक के उस अधिकारी का नाम लीजिए। सारी जो बैंकिंग कम्युनिटी है, 12 लाख कर्मचारी हैं, 50 से ज्यादा बैंक है, उनको टारगेट मत करो। नहीं तो जो ईमानदारी से काम किया है अगर वो नाराज हो गए तो सरकार को भुगतना पड़ेगा। जीवीएल साहब, यहाँ पे एक तरह से एक चुनौती भी है आपके लिए कि सरकार को भुगतना पड़ेगा अगर ये सब लोग नाराज हो गए। सारा ठीकरा बैंक के ऊपर फोड़ देना क्या सही है? वो कह रहे हैं कि सीरीज निकलवा लीजिए किस किस बैंक के पास गए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। सभी को क्यों बदनाम किया जा रहा है सरकार की तरफ से? मैं उनसे पूरी तरह उनसे सहमत हूं। ये पूरे सारे कर्मचारियों को ये कहना बिल्कुल गलत होगा। और किसी भी सेक्टर में आप देखिए, पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री को, पूरे बैंकिंग सेक्टर को बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है ब्लैक शीप है। ये कहीं ना कहीं सिस्टम से ही लीकेज हुआ है। और तो इनको पकड़ना, जहां छापे में पैसे को बरामद किया, वो किस बैंक के करेंसी चेस्ट से उनको गया, किस बैंक से, किस अकाउंट से निकला, ये पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, होगा भी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में तो जवाब में कह दिया ना कि बैंक मैनेजरों की वजह से हो रहा है। आपने तो सभी सारे बैंक मैनेजरों को एक ही थाली में लाकर रख दिया। ये संभव नहीं है कि बैंक मैनेजर ही ब्रांच से ही ये पैसा निकला हो इतनी बड़ी तादाद में। सुनिए प्लीज, ये पॉसिबल नहीं है राव साहब। आप देखिए, ब्रांच में जब होता है तो ऑब्वियसली वहां का ब्रांच मैनेजर के नॉलेज के बिना तो नहीं होगा, इतना बैंकिंग एक्सपर्ट भी एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, नहीं होगा। एक ब्रांच को 20 से 25 लाख से ज्यादा पैसा नहीं मिला। 20 लाख रुपया दिया जाता है, करोड़ों रुपए एक ब्रांच को नहीं मिला है। दिया जाता है। इसका सवाल है, जब एक ब्रांच में 20 लाख रुपया दिया जा रहा है तो इतनी बड़ी तादाद में कैसे पहुंच के बाहर? कांग्रेस पार्टी करेंसी कन्वर्शन में काम कर रही है। वो ये सवाल कर रहे हैं जब जीवीएल जब बड़ी बड़ी ब्रांचों में 20 लाख 30 लाख रुपया दिया जा रहा है एक दिन में, वो भी एक दिन नहीं, आज दिया, 2 दिन नहीं दिया, फिर दिया,
तो इतनी बड़ी तादाद में वहां से कैसे पैसा बाहर जा सकता है? इसकी एक इंक्वायरी कराइए, इसकी एक कमेटी बिठाइए आप। बिल्कुल ठीक है, इसकी एक कमेटी बिठाइए, इंक्वायरी हो कि जहां करेंसी चेस्ट में पैसा ट्रांसपोर्ट हुआ है वो किस किस सीरीज का पैसा ट्रांसपोर्ट हुआ है, को पता है। और जैसे इन्होंने कहा कि किस बैंक में वो सीरीज गई है उसको पकड़ो आप। कहां से किस, आपका खुफिया तंत्र बहुत सक्रिय है, इसमें कोई शक नहीं है। लोग पकड़े जा रहे हैं, लेकिन आप उसकी सच्चाई तक पहुंचिए। और ये तो कुछ गिनती के लोग पकड़ाए हैं जीवीएल जी, अगर बड़ी संख्या में सप्लाई हुआ है तो पकड़ाए नहीं है। कांग्रेस पार्टी में तभी तो इतना तमाम हो रहा है जनता में, क्योंकि ये जो काम हुआ है ये गिनती के लोगों ने किया है, कोई सारे के सारे हजूर ने काम नहीं किया। देखिए कांग्रेस पार्टी ने बैठ के नहीं, कांग्रेस पार्टी कमीशन देश को नुकसान हुआ है ना कांग्रेस पार्टी इस ट्रांजेक्शन कॉस्ट 1,28,000 करोड़ रुपए है जो अपरिपक्व निर्णय आपने लिया है। आप समझ लीजिए, आपने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया, आपने कहा कि 10 लाख करोड़ रुपए वापस आएंगे वोट करेंसी के, और बाकी का ब्लैक मनी जो वापस सिस्टम में नहीं आएगा। कांग्रेस ने जो किया नहीं किया उसकी सजा उन्होंने 2014 के चुनाव में भुगत ली। इस वक्त हम 2016 में 2014 हार गए तो कोई भी क्राइम कर सकते हैं। अभी बीजेपी क्या बात कर रही है? नोटबंदी की आज कमीशन एजेंट की काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। आप अपने अपराध से बच नहीं सकते किसी पर ब्लेम लगाकर। कमीशन एजेंट के काम कर रहे हैं, छोड़ दीजिए ना, कार्यालय में बैठ के जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं आप कैसे छोड़ेंगे? कमीशन एजेंट तो आप कांग्रेस पार्टी को छूट है, आप ही उनको बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को छूट है, आपसे बड़ा कोई कमीशन एजेंट हो सकता मैं ये है? कह रहा हूँ कि आपका खुफिया तंत्र बहुत सक्रिय है। में स्टिंग में पकड़े गए लोग, उसको छोड़ दीजिए, वो सियासत को छोड़ दीजिए। साहब उसकी तो एजेंट की काम कर रहे हैं। आप लोग भारी बहुमत क्या दें? राहुल जी, आप सियासत को छोड़कर इस मुद्दे पर आइए कि आपका जो खुफिया तंत्र है वो बहुत सक्रिय है। मान लिया लोग पकड़े जा रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि जो लोग पकड़े जा रहे हैं, क्या एक ब्रांच मैनेजर जिसको मिलता ही 20 लाख 30 लाख है डिस्बर्स करने के लिए, क्या इतनी बड़ी तादाद में लोगों के पास वो पैसा पहुंच सकता है उनके थ्रू, या कोई और चैनल भी हो सकता है? इसकी एक इंक्वायरी होनी चाहिए कि अगर एक सीरीज में नोट आ रहे हैं, जैसे इन्होंने बोला अभी एक सीरीज में आ रहे हैं, तो वो किस बैंक की करेंसी चेस्ट में और आरबीआई ने भेजे हैं, और उस बैंक से पूछा जाए, वहां पर इंक्वायरी की जाए उस करेंसी चेस्ट की कि कहां से लीकेज हो गई है। अश्विन साहब, आप जाते जाते, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है मेरे पास, आपको लगता है ट्रस्ट डेफिसिट कस्टमर्स के अंदर जो है मतलब उनके अंदर भी हो रहा है और बैंक्स के अंदर भी हो रहा है, जो कि वहाँ पे जो कि वर्कर्स हैं? बिल्कुल, वर्कर्स में भी है, कस्टमर में भी ट्रस्ट जो है ये खत्म नहीं होना चाहिए। अगर कस्टमर का ट्रस्ट बैंकिंग पे खत्म हो गया तो एक बहुत खतरनाक पोजीशन जो है इस देश के लिए होगी, जो कि अच्छा नहीं होगा। इसलिए रिजर्व बैंक को बहुत जल्दी जो है कितना पैसा किस बैंक को दिया है ये भी कम से कम वो डिक्लेयर करे कि प्राइवेट बैंकों को ज्यादा पैसा दिया गया और पब्लिक सेक्टर को कम दिया गया। जो इसमें शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई करके सामने आए, उन लोगों को पकड़े, उन्हें सजा दे, हर एक को, हर एक बैंक को, और ऐसे हवा में हर बैंक मैनेजर को बदनाम ना किया जाए, ये इनका कहना है। और सरकार को इसमें आगे आना पड़ेगा और उन्हें कार्रवाई करके ये सब कुछ दोषियों को सजा दिलवाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब देश है जो कि सवाल पूछ रहा है कि आखिर 37 दिन बाद भी क्यों नहीं हालात सुधर रहे हमारे लिए, एटीएम के बाहर भी और बैंकों में भी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। 5 की 95 फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें रहेंगी जारी। नमस्कार।